Good morning, dear students. Today we will start our new chapter, that is computer network and its types. Okay. Now, first of all, in this chapter we will start from very basic, that is the definition of computer network. This definition we have studied in our lower classes many a time. So, what is the definition of computer network? Computer network is an interconnection of two or more autonomous systems that is used to share information and resources. Now, what do you mean by autonomous? Autonomous means independent. These two devices don't have any particular relation. Okay, in a simple way, we can say that what is a network? That whenever we connect two or more devices, it will form a network. And why we are connecting these two devices? To share information and resources. And these devices are autonomous means independent. These two devices have do not have any relation. Okay, so the computer network means to connect two or more devices for the purpose of sharing information and resources. Now, what are the benefits? It computer network facilitate communication through email, video conferencing, instant messaging, or any other mode. For communication purpose, you can use computer network. Now, what do you mean by instant messaging? Let us suppose you are sending a message in WhatsApp, Instagram, and Facebook. These all are the part of instant messaging. I'm talking about only text messages. Okay. Now, share hardware devices like printer or scanner. Now, let us suppose the situation in an office there are 10 employees, so it is not possible to purchase a separate printer for each employee. Here, in this scenario, what we will do, we will purchase only a one printer and we will share that one printer among each employee. Okay, it will save us the hardware cost. Now, third is enable file sharing. We know we use file sharing app like ShareIt. We are using till now, but now ShareIt is banned. So we can use FileGo, which is a product of Google, and we can use the Geo Switch for the file sharing. Okay, so we use these apps to share the file. Now, share software or operating programs. Now, one example I want to give you. I hope you have used one app, one school app. The name of the school app is Campus Soft. Okay, banner.campussoft.in. Okay, this is the app. This is the software. Now, this software is used by the administration. This software is used by the teachers. This software is again used by the student. So, what we are doing here, we are making one software, and this software is shared by everyone. Okay, so it is saving the cost. We are not purchasing the software, individual software for the individual employee, for the individual person. We are purchasing one software and we are sharing that software to many persons. Like one example I want to give you again, you can purchase one antivirus and you can share that antivirus in two or three persons. Like it is depend what type of antivirus you are purchasing. If you are purchasing antivirus for 2% or 3%, you can share it. Okay, so one software can be shared among many. One software can be shared between among many persons. Okay, share information again. I have told you that. Now, the next is disadvantages of computer network. Now, what are the disadvantages? Lack of robustness because it is not very strong, because sometimes you can find information is leaked. You can hear every day that that particular website, that particular company is leaked our data. There are many apps that Indian government has banned. They are leaking our data from. Okay, so these are the problems for in computer network. Security issue is there. Okay, cost of network again. um, Cost of network will be there. Now,
there is one concept, it is not a concept, one thing I want to tell you. um, Network is free, like a air. What is network? Network is a air. Each and every signal is uh, transmitted in a air. So if we are breathing and we are not, it is free of cost. So in a similar way we can say that, because network जो है वो पूरे all over the air में established है, तो जब हम सांस लेने का, जब हम ब्रीदिंग का हमें कोई चार्ज नहीं मिलता, तो हम ये ऐसा कैसे, हम नेटवर्क की कॉस्ट क्यों देते हैं, हम नेटवर्क का पैसा क्यों देते हैं? तो नेटवर्क जो एक्चुअल कॉस्ट है वो नेटवर्किंग की कॉस्ट ना होकर क्या होती है, वो नेटवर्क मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है। तो जो आईएसपी हमसे पैसा लेती है, जो हम रिचार्जेस करते हैं, उसका जो मेजर पोर्शन जाता है वो जाता है नेटवर्क मेंटेनेंस में। देखो, क्योंकि बहुत कॉमन होता है कि आप कहीं हवा चल गई, कि कभी आपका आधी तूफान आ गया तो केबल ब्रेक हो गई, केबल आपकी कोलैप्स हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो भी आपका नेट केबल आपकी खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो भी आपकी केबल खराब हो जाती है। तो जो जितने भी हमारे आईएसपी होती हैं, वो आपसे जो चार्जेस लेते हैं उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो आपका सर्विस चार्ज ना होकर, नेटवर्किंग चार्ज ना होकर क्या होते हैं, नेटवर्क मेंटेनेंस चार्ज होता है। तो जो नेटवर्क होता है उसको जनरली कंसीडर किया जाता है कि वो फ्री है, बट जो चार्जेस हमसे लिए जाते हैं उसके मेंटेनेंस के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क होती है, वो कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क जो होता है वो आपको आपका मेंटेनेंस के पार्ट पे ज्यादा होता है, ना कि एक्चुअल नेटवर्क के कॉस्ट। नाउ, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में जो फर्स्ट नेटवर्क है वो है आपका ARPANET। फुल फॉर्म उसकी है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फुल फॉर्म यहाँ पर रॉन्ग लिखी हुई है, फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पर मिसिंग है। नाउ, जो फर्स्ट नेटवर्क कंसीडर किया जाता है, द फर्स्ट नेटवर्क इज अ ARPANET। ठीक है, ये जो इसको जो स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था आपका 1960s के में। ये क्या हो गया था, आपका ये नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया था। और बट जो इस नेटवर्क पे जो फर्स्ट मैसेज सेंड हुआ था, वो मैसेज हुआ था 1969 पे। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ था वो 1960s पे हो गया था, बट जो फर्स्ट मैसेज इस नेटवर्क पे सेंड किया गया था वो 1969 पे किया गया था। और उसमें आपके फोर जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं उनको कंबाइन किया गया था, और उनके बीच जो फर्स्ट मैसेज आपका सेंड हुआ था। और धीरे धीरे ये नेटवर्क आपका एक्सटेंड हुआ, बट इनिशियली ये जो आपका नेटवर्क बना था, इसमें 4 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं यूएस की, उनको कंबाइन किया था। ठीक है, और वो मैसेज कब सेंड किया हुआ था, 1969 में। तो पहला जो कॉमर्शियल, जो पहला यूज है ARPANET का, वो आपको देखने को मिलता है 1969 पे, जहां पर पहला मैसेज सेंड किया गया था। ओके, सो इट वाज डिजाइन एंड नेम बाय ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एंड DoD, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये नेटवर्क को हमने क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। इट वाज द बंच ऑफ द पीसीज एसोसिएटेड विथ वेरियस कॉलेजेस एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। ओके, तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ था, और इसमें नेटवर्क है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, बंच ऑफ पीसीज होंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। सपोज एक यूनिवर्सिटी में अगर 10 पीसीज भी हैं, तो टोटल 40 पीसीज क्या हो जाएंगे, वहां पर आपके कनेक्ट हो जाएंगे। और ARPANET इनिशियली मैंने आपको बताया था कि 4 पीसीज को कनेक्ट हुआ था, धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया गया। और धीरे धीरे जब एक्सटेंड किया था तो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे एक वर्ल्ड क्या हो गया, पूरा ओवरऑल ग्लोब वो एक नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया, पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, उस नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। और जब पूरा वर्ल्ड उस नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को क्या नाम दिया गया, आपका इंटरनेट दिया गया। और इंटरनेट जो था उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होती है। ठीक है, इट इज द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम of interconnected computer network that uses the internet protocol suite IP address जिसको बोलते हैं हम internet protocol suite TCP/IP to communicate between networks and devices. It is a network of networks that carries a vast range of information resources and services such as interlinked hypertext documents and applications of the World Wide Web, electronic mail, telephony and file sharing. All in all, we can know that internet क्या है एक्चुअल में। इंटरनेट इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क
जितने भी इस वर्ल्ड में नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं उन सब को हमने क्या किया, कंबाइन किया है, और उन कंबाइन करने के बाद जो एक आपका फाइनल आपका जो नेटवर्क बना उसको क्या बोला हमने, इंटरनेट बोला। और ये जो इंटरनेट होता है वो किसका यूज करता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। टीसीपी आईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट वर्क करता है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, जहां पर वो आईपी एड्रेसेस के थ्रू क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। जब भी इंटरनेट आप यूज करते हो तो अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड होती है इंटरनेट में, तो सबसे पहले आपको एक इंटरनेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड होता है, और वो आईपी एड्रेस आपकी आपके सिस्टम की आइडेंटिटी होती है नेटवर्क में, ठीक है। तो दैट आईपी एड्रेस विल वर्क एज एन आइडेंटिटी इन इंटरनेट, वो आपकी एज आइडेंटिटी की तरह काम करता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में जो इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आप अगर आपने डाला www.google.com, आपने रिक्वेस्ट करी, गूगल के सर्वर ने आपको रिस्पॉन्ड किया, वो जो रिस्पॉन्ड एक्चुअल में हुआ है वो कैसे हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। वो आपको जो रिस्पॉन्ड मिला है वो किसकी फॉर्म में मिला है, वेब पेजेस की फॉर्म में मिला है। और वो जो वेब पेजेस होते हैं वो आपके किस में रिटर्न होते हैं, HTML में रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मींस HTML डॉक्यूमेंट, जो आपने HTML में कोडिंग करी है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके वही होते हैं जिनको हम वेब पेजेस बोला जाता है। तो जितना भी कम्युनिकेशन होता है, सर्वर सर्वर जो हमें रिक्वेस्ट जो हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, वेब पेजेस की फॉर्म में करता है, ठीक है। और हम इंटरनेट की हेल्प से क्या करते हैं, ईमेल यूज कर सकते हैं, टेलीफोनी में सब ऑडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, हम सारे काम इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज इंटरस्पेस। इंटरस्पेस एक्चुअल में क्या होता है, इट इज अ विजन of what the internet will become, where users cross correlate information in multiple sources. It is an application environment for interconnecting spaces to manipulate information, much as the internet is a protocol environment for interconnecting networks to transmit डेटा। ओके, सो इंटरस्पेस क्या होता है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरस्पेस इज अ विजन, बट आज की डेट में इंटरनेट इज नॉट अ इंटरस्पेस इज नॉट अ विजन, इट इज अ रियलिटी नाउ डेज। सिंपली अगर मैं बात करूं कि आपका जो इंटरस्पेस होता है, ठीक है, इंटरफेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ मल्टीपल यूजर्स इन अ क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, to send and receive data in various types such as data files, video, audio, and text file. Interspace gives the most ex exceptional type form to communicate अवेलेबल ऑन इंटरनेट टुडे, ठीक है। सिंपली अगर मैं इंटरस्पेस की बात करूं तो इंटरस्पेस क्या होता है, इंटरफेस नॉट अ विजन, इट इज अ रियलिटी नाउ डेज। इसके थ्रू मल्टीपल जो यूजर होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने देखा कि मल्टीपल यूजर आज की डेट में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, जब कम्युनिकेट करेंगे तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। वो फाइल आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो डेटा फाइल हो सकती है, वो आपकी ऑडियो फाइल हो सकती है, वो आपकी वीडियो फाइल हो सकती है। जब इंटरनेट बना था, इंटरनेट जब उसी टाइम पे एक एक विजन दिया गया था कि आज हमारा इंटरनेट की जो एक लिमिटेड उसकी एक लिमिटेशन है, बट हमने एक वहां पर एक विजन क्रिएट किया था इंटरस्पेस के नाम से, और हमने ये सोचा था कि आगे चल के ऐसा होगा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां पर हम मल्टीपल यूजर एक साथ कम्युनिकेट कर पाए और वो किसी भी फाइल को सेंड कर पाए, चाहे वो ऑडियो चाहे वीडियो। बट आज की डेट में क्या है, ये एक रियलिटी है, आज की डेट में हमने अचीव कर दिया है। तो अगर आप इंटरनेट में देखते हो ये विजन है, तो वो जब इंटरनेट बना था तो उस टाइम पे एक विजन दिया गया था, बट आज की डेट में हमने इंटरस्पेस जो है हम इसको यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे आज की डेट में ये क्या हो रहा है, आपका अचीव हो रहा है। आज से 3 या 4 साल पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप एक साथ मल्टीपल पर्सन को वीडियो कॉल कर सकें। अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो 1 to 1 आपकी कॉलिंग होती थी, बट आज की डेट में आप देखते हो कि आप
व्हाट्सएप के थ्रू 2 या 3 पर्सन के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, आगे जाके और भी डेवलपमेंट होगा। अभी आपका इंटरस्पेस जो होता है हो चुका है, वो स्टिल इन प्रोग्रेस है, अभी इसमें वर्क हो रहा है। आगे जाके इसका क्या एंड होगा, कहाँ तक ये पहुंचेगा, वी नेवर नो। बट एक्चुअली जो इंटरस्पेस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल जो पर्सन होता है वो आपके एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो किसी भी फाइल को सेंड कर सकते हैं। वहां पर फाइल का कोई बैरियर नहीं है, ना फाइल के साइज का कोई बैरियर है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। दिस इज द बेसिक ऑफ इंटरनेट। थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप लर्निंग।